Hello everybody, myself Jyoti Mayekar, and today I have come up with a review of the book Small Steps to Big Reading. And this book is written by Josefa Bhinderwala, और ये बुक बेसिकली है फॉर कन्वर्टिंग नॉन रीडर्स टू रीडर्स. सो सबसे पहले आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि दिस बुक इज़ अबाउट स्पीड रीडिंग. आपकी रीडिंग स्पीड को कैसे इम्प्रूव करके यू कैन टर्न इनटू अ वेरी गुड रीडर, उससे रिलेटेड ये बुक है. सो इफ़ यू वांट टू नो योर रीडिंग स्पीड, आप गूगल पे जस्ट टाइप करो ऑनलाइन स्पीड रीडिंग टेस्ट. सो दैट विल, देर आर सो मेनी वेबसाइट्स, तो वहाँ पे जाके यू कैन टेक दैट फ्री टेस्ट एंड you will come to know what is your reading speed. 300 words per minute, 250 words per minute, and there they have given very good analysis also ki if you have words 300 words per minute, that means you are good reader, average reader, and all those categories. So take that speed reading test, that will give you your reading speed as well as your comprehension. After reading, how much you are able to understand that particular topic, वो comprehension percentage भी आपको मिलेगा. So take that test. So this book starts with being a reader is always better. जो भी नॉन रीडर्स हैं, they also know that reading it is a very good thing and one should read. जितने भी टॉप मोस्ट पीपल है in any field, they have one thing in common, they are very good readers. So here why we are not able to read, why we are not good readers? So there are some villains of reading. So यहाँ पे ऑथर ने बहुत ही अच्छे से बताया है कि कौन से हैं विलन्स. सो ही सेज कि देर आर टू टाइप्स ऑफ विलन्स. एक तो है टेक्नोलॉजिकल विलन्स एंड सेकेंड है नॉन टेक्नोलॉजिकल विलन्स. टेक्नोलॉजिकल विलन्स यानी कंप्यूटर गेम्स, डिजिटल एंड सोशल networking websites, texting on cell phones, then instant messenger, computer games, ये सारे हो गए टेक्नोलॉजिकल विलन्स. एंड नॉन टेक्नोलॉजिकल विलन्स है लेजिंग अराउंड, social events, attending social events, and chilling with friends. तो ये सारे हो गए नॉन टेक्नोलॉजिकल विलन्स. नाउ हाउ टू फाइट विद दिस विलन्स. तो यहाँ पे उन्होंने दो चीज़ें बताई है. एवरीवन, ऑल ऑफ यू नो अवर टाइम वेस्टर्स. मुझे पता है कि आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, सो फेसबुक इज टाइम वेस्टर फॉर मी. तो आई कैन कीप अ picture, a poster of Facebook at my workplace desktop, at my table and chair, so that will keep me reminding that this is my villain of reading. So I should not spend too much time on Facebook. So all of you must be knowing your villain, your technological villain. So keep a poster of that villain. And second thing, you can keep a picture of your goal as a reminder. See, most of you may be students who are studying or who are reading books because they want to get good marks, and that is how it is for educational purpose. So for that also, you keep your goal, whosoever you want to become, keep your goal as a reminder wherever you sit for reading a book. Now here he has given a very good approach just for 10 minutes approach, where he says that हमारा ब्रेन जो है वो बहुत ही अलग तरीके से काम करता है. अगर आप ब्रेन को बोलोगे कि जस्ट फॉर 10 मिनट्स ही तुझे पढ़ना है, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू रीड फॉर 10 मिनट्स, इट विल स्ट्रेच. वो 15-20 मिनट्स भी पढ़ लेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा. सो जस्ट टेल योर ब्रेन, उल्लू बनाओ उसे, बोलो कि 10 मिनट ही पढ़ना है, एंड इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स. देन यहाँ पे ऑथर ने इस बुक में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि रीडिंग के बारे में क्या क्या मिथ्स है और कितने फॉल्स नोशंस है. सो फर्स्ट थिंग इज, ऑल ऑफ अस वी थिंक दैट देर इज़ अ नेचुरल रीडिंग स्पीड विच इज़ नॉट ट्रू. अगर आपने गूगल पे चेक कर लिया है पहले ही अपना नेचुरल रीडिंग स्पीड, सो इट मे बी 200 वर्ड्स पर मिनट, 300 वर्ड्स पर मिनट और वॉट एवर, बट यू कैन इंक्रीज दैट स्पीड to 1000 or 1200 words per minute. So in a very less time you can read loads of books. So second चीज़, हम लोगों को बचपन में क्या सिखाई जाती है कि अगर धीरे धीरे पढ़ोगे तो you will understand in a better way, which is false. When you read fast there is a less distraction, so there is a better focus. Third thing, हम लोग को बोलते हैं कि एक एक वर्ड पढ़ो, हर एक वर्ड पढ़ना, कोई वर्ड मिस मत करना, which is also wrong. हमारा ब्रेन इस तरीके से फंक्शन करता है कि इवन इफ यू मिस फ्यू वर्ड्स इन बिटवीन, स्टिल योर ब्रेन कैन मेक सेंस ऑफ इट. सो देर इज नो नीड टू रीड वर्ड टू वर्ड.
और एक चीज़ जो प्राइमरी स्कूल में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा सिखाई जाती है कि रीडिंग, वेन एवर यू आर रीडिंग, रीड इट अलाउड। अगर आप ज़ोर से पढ़ोगे एंड आप सुनोगे कि आप क्या पढ़ रहे हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, विच इज़ अ मिथ, कंप्लीट मिथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। रीडिंग इज़ नॉट हियरिंग डिपेंडेंट फंक्शन। नेक्स्ट इज टंग इज नॉट नेसेसरी फॉर रीडिंग। तो आपको टंग हिलाने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू यूज़ योर टंग, जॉ, लिप्स फॉर रीडिंग। और 100% आपने जो भी पढ़ा है वो आपको पता होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। सो एक्चुअली वॉट यू शुड नो इज जिस्ट ऑफ वॉट यू हैव रेड। नेक्स्ट इज it is not necessary that you should read books related to your field या related to your school or college. You can read any number of books. And for that, he has given a very good sentence. Once you acquire a driving license, the type of car you have to drive is not of much consequence. And he has specifically mentioned you don't have to use your tongue, your jaw, your teeth, lips. ये कुछ भी use नहीं करना है. Organs of reading are only two: your eyes and your brain. He has given a suggestion in this particular book that before you start reading a book, you should preview it. अगर आप preview करते हो तो then your brain gets ready for reading that particular book. तो आपका स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ता है. जैसे कि लुक एट द फ्रंट कवर, लुक एट द बैक कवर, गो थ्रू द टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ दैट बुक, चेक द लेआउट, उसका वर्ड स्टाइल कैसा है एंड ऑल दैट. इफ इट गेट्स फीटेड इन योर ब्रेन देन automatically you get adjusted to that book and that helps you. And he says, suppose if you are reading a book for educational purpose, in that case note taking is very important because it has neuropsychological benefits. Like अगर आपने पहली बार वो बुक पढ़ा एंड पहली बार वो बुक पढ़ते वक्त आपने नोट्स लिए हैं तो सेकेंड टाइम व्हेन अगेन यू विल रीड दैट बुक तो somewhere in your brain it is already, you already know, because whenever you have taken notes that information is already fed your brain and second time your understanding will be more. And for better reading your brain should be relaxed brain hona chahiye. For that suppose you are starting to read a book, first meditate, relax your book, relax your brain, keep the distractions away, be in a very good environment. तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने वहाँ पे कही है. He has specifically mentioned how should be the environment, how should be the setup, how you should sit, what should be the posture. वो सारी चीज़ें इस बुक में बहुत ही अच्छी तरीके से बताई गई है. एंड उन्होंने बहुत ही अच्छे टिप्स दिए हैं. लाइक उन्होंने कहा है कि एक लॉन्चर यूज़ करना है. लॉन्चर इट इज़ नथिंग बट अ विजिटिंग कार्ड जैसा कुछ भी. और उन्होंने रूल्स बताया है कि वो लॉन्चर कैसे यूज़ करना है. देन ही हैज़ टॉक्ड अबाउट लॉन्जिट्यूड शीट. लेकिन ये तीनों चीज़ें मैं आपको नहीं बता रही हूँ बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू टू गो थ्रू दिस बुक, रीड दिस बुक एंड यूज़ इट टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड. एंड कभी कभी हम लोग कैसे कि हम लोग को लगता है कि कोई पैराग्राफ है हम लोग को समझ में नहीं आया, वी जस्ट गो बैक एंड रीड दैट पैराग्राफ अगेन, बट दैट इज कॉल्ड एज रिसेशन. देयर शुड ऑलवेज बी प्रोग्रेशन, नॉट रिसेशन. एज तो ब्रेन आगे अगर आप वो पैराग्राफ नहीं समझ में आया फिर भी इफ यू कंटिन्यू रीडिंग दैट विल इंक्रीज योर कॉम्प्रहेंशन. दैट इज वॉट इट इज मैंशन इन दिस पर्टिकुलर बुक. एंड ही हैज़ गिवन अ वेरी गुड आइडिया हाउ वी रिटेन इन्फॉर्मेशन. तो आपने अगर कुछ पढ़ा है तो वो आपको 10% दैट इन्फॉर्मेशन इज रिटेन्ड. कुछ सुना है तो 20% ऑफ इट इज़ रिटेन्ड. अगर कुछ देखा है तो 30% ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन इज रिटेन्ड. अगर आप देखते भी हो और सुनते भी हो देन 50% ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन इज रिटेन्ड. अगर आप वो इन्फॉर्मेशन बोलते हो, यू आर स्पीकिंग आउट दैट इन्फॉर्मेशन, देन यू विल रिमेंबर 70% ऑफ इट. एंड अगर आप वो बोलते भी हो और वही चीज़ आप कर भी रहे हो देन यू विल रिटेन 90% ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. दिस इज वॉट इज गिवन एंड इट इज़ ब्यूटिफुली रिटन बुक. एंड द टिप्स गिवन फॉर इंक्रीजिंग और इम्प्रूविंग योर स्पीड रीडिंग दे आर ऑल्सो वेरी गुड टिप्स. बट मैंने वो सारी टिप्स यहाँ पे शेयर नहीं की है just because I want you to go through this book and really over the time you will find that your reading speed has increased from 300 words per minute to 1000 words per minute and with a very good comprehension. So speed reading का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका comprehension, understanding of that particular topic will be less because हम लोगों का brain बहुत fast काम करता है और अगर आप fast पढ़ते हो तो
उसको हेल्प ही होती है, ब्रेन को हेल्प होती है फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन अ वेरी नाइस वे. सो आई highly recommend this book. If you are a non-reader, this book is for you. If you are a good reader, then for increasing your reading speed, this book is for you. Thank you so much. If you have liked my video, please like, share and subscribe. Thank you.